السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اساتذہ کرام، چاہے آپ کلاس 1 to 5 میں فارم بھرے ہوں یا پھر 6 to 8 کے لیے فارم بھرے ہوں، میں آپ سے اب گزارش کروں گا کہ ہماری ویڈیو کو تقریباً آپ نے 10 سے 11 تک دیکھا ہوگا، لیکن اس ویڈیو کو بغیر دیکھے آپ امتحان ہال میں نہیں جائیں گے۔ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف 30 ٹاپک میں آپ کو اتنا امپورٹنٹ دے رہا ہوں کہ اس میں سے یقین جانیے، مجھے یقین ہے 100% خدا کی ذات سے کم اس 30 ٹاپک میں آپ کے 10 کوشچن پوچھے جائیں گے، 10 یاد رکھیے گا۔ اور امتحان کا ہال سے نکلنے کے بعد سے تسلی سے آپ دعائیہ جملہ کے ساتھ مجھے فون بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ کوشچن آپ کو ضرور پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ چند اصطلاحات کی جانکاری جو کہ بہت ہی اہم ہے اور اسی کو ہم نے ٹارگٹ بنا کر کے آپ کو فرسٹ ویڈیو سے پہلے ایک ایڈورٹائز کے طور پر دیا تھا، آپ کو ایک ڈیمو کے طور پر دیا تھا اور آپ کو بتایا تھا یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے دیکھیے، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کوشچن امتحان میں کیسے بنتے ہیں اور آپ کیسے آسانی سے چٹکیوں میں بجا کر کے نکال سکتے ہیں۔ نمبر 1، حمد کسے کہتے ہیں؟ آپ بیس کو سمجھنا ہے، آپ کو بنیادی سمجھنا ہے۔ جس نظم میں اللہ کی تعریف بیان ہو اسے حمد کہتے ہیں۔ جس نظم میں اللہ کی تعریف بیان ہو اسے ہم حمد کہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا آپ۔ 1 نمبر 2، نعت کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ سنیے گا، اتنا آسانی سے سمجھا رہا ہوں کہ دل آپ کا خوش ہو جائے گا، اور آپ امتحان تو دیں گے انشاءاللہ، امتحان عارضی ہے اور آپ کامیاب بھی ہوں گے، لیکن جب کلاس میں جائیں گے تو بچوں کو جو پڑھائیں گے تو بچے آپ کی تعریف شہر میں کریں گے، علاقے میں کریں گے، گاؤں میں کریں گے، واقعی مجھے ٹیچر ملے۔ سنیے گا، 2 ہو گیا نعت، اور تیسرا میں ہے منقبت، جس میں ولیوں کی تعریف ہو اسے منقبت کہتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ حمد ولنی فور اللہ کی تعریف، نعت ولنی فور نبی کی تعریف، منقبت ولنی فور نیک بندوں کی تعریف، اللہ کی، بزرگوں کی، نیک ولیوں کی، بڑے بڑے اکابر کی جس میں بیان ہو، تعریف ہو، اس کو منقبت کہتے ہیں۔ اب چوتھا لیجیے آپ، قصیدہ جس میں حاکم کی، حکومت کی، کسی کی بھی، ہماری آپ کی کسی کی بڑائی ہو یا پھر برائی ہو، اس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ، چاروں جان لا، حمد ولنی فور اللہ، اور نعت ولنی فور نبی، اور منقبت ولنی فور ولی، بزرگ، نیک لوگ، اور قصیدہ میں کسی کی۔ اب یہاں میں آپ بتا رہا ہوں اس میں سے کوشچن کیسے بنے گا، سنیے گا دھیان سے۔ کوشچن کوئی ایک آئے گا نہیں، 2 آئے گا، پوچھے گا کہ جس نظم میں نبی کی تعریف ہو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس نظم میں نبی کی تعریف ہو کیا ہوگا، کیا کہتے ہیں؟ اور وکلپ یہی 4 ہوگا، حمد، نعت، منقبت، قصیدہ۔ کیا چنیں گے آپ؟ جس نظم میں نبی کی تعریف ہو کیا چنیں گے؟ چنیں گے کہ جناب اس کو تو ہم حمد کہتے ہیں، اس کو تو ہم نعت کہتے ہیں۔ جس نظم میں حمد اللہ کی تعریف ہو کیا کہتے ہیں؟ تو آپ حمد چنیں گے۔ جس نظم میں ولیوں کی تعریف ہو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم منقبت کہیں گے۔ اور جس نظم میں کسی کی، امتحان میں جائے گا بڑا شان سے آتا ہے، جس نظم میں کسی کی بڑائی ہو، کسی کی برائی ہو کیا کہتے ہیں؟ تو قصیدہ کہتے ہیں۔ بس یہ 4 یاد رکھیے، اس میں سے 2 کوشچن آپ کے امتحان میں آتے ہیں، جو بھی آ جائے، یہ نہیں کہہ سکتا یہی آئے گا، لیکن ان 4 کی ڈیفینیشن یاد ہے آپ کو، سب یاد ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 5 میں ہے کہ مناجات کسے کہتے ہیں؟ مناجات تو جس نظم میں اللہ رب العزت سے دعا کی جائے، درخواست کی جائے، اس کو ہم مناجات کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بچوں کو پڑھا ہوگا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور یہ دے دے اور پوچھے کیا ہے؟ نعت ہے؟ نہیں۔ منقبت ہے؟ نہیں۔ قصیدہ ہے؟ نہیں۔ مناجات ہے؟ یس، کیونکہ اس میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو جس میں اللہ کی تعریف ہو، حمد ہے، نبی کی تعریف ہو، نعت ہے، بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی تعریف ہو، منقبت ہے، اور جس میں کسی کی بھی ہو، حاکم کی، حکومت کی، ہماری آپ کی کسی کی بڑائی بھی ہو یا برائی بھی ہو، وہ قصیدہ ہے۔ اور جس نظم میں اللہ سے دعا کی جائے اس کو بولتے ہیں مناجات۔ معلوم ہو گیا؟ یہ 5
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन रखिएगा कि इन 5 में से 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। सवाल लिखते हैं, 6 में बढ़ते हैं। मरसिया किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और BBI में से है। मरसिया किसी के मरने के बाद रजोगम का इजहार करने को मरसिया कहते हैं। ये आपने सुन लिया सादा सिंपल में कि मरसिया किसी के मरने के बाद रंजोगम का इजहार करने को मरसिया कहते हैं। फिर इम्तिहान में पूछेगा कि अगर किसी के मरने के बाद रंजोगम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं। फिर विकल्प वही 4 रहेगा, कसीदा, नदम, गज़ल, मरसिया। चुनेंगे आप, जब मरने का जिक्र हो जाए, रंजो गम का जिक्र हो जाए तो आप चुनेंगे कि मरसिया है। क्या है, मरसिया है। अब आइए, नज़म किसे कहते हैं, याद कीजिए, बच्चों को पढ़ाइएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। बच्चे आपकी बड़ाई करेंगे, आपका चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे, तस्करा करेंगे कि मरसिया की नज़म किसे कहते हैं। देखिए, हर वो चीज़ जो 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में सजा कर लिखा जाए, काफिया रदीफ का लिहाज करते हुए उसे हम नज़म कहते हैं। हर वो चीज़ जो सजा कर लिखा गया हो उसको हम क्या कहते हैं, नज़म कहते हैं। इसी को इंग्लिश में हम पोयम कहते हैं, इसी को हम हिंदी में कविता कहते हैं और उर्दू में नज़म कहते हैं या फिर नात कहते हैं। ठीक है ना। तो नज़म हर वो चीज़ जो सजा करके 2-2, 3-3 लाइन में लिखा जाता है ना, आप भी देखते होंगे हर किताब में होता है, तो उसको बोलते हैं नज़म। और नसर किसे कहते हैं, हर वो चीज़ जो किसी एक मौजू पर कहानी के टाइप पर लिखा गया हो, क्या हो जाएगा, वो आपका नसर हो जाएगा। तो नसर और नज़म में यही डिफरेंस है, यही फ़र्क है कि नज़म जो सजा लिखा गया और लाइन बाय लाइन, और नसर जो कहानी के टाइप पे लिखा गया उसको नसर कहते हैं। अब आइए नंबर 9 में आइए, वाहिद किसके कहते हैं। वाहिद एक को कहते हैं, जैसे कि लड़का, लड़की, कलम। लड़का, लड़की, कलम, ये सिंगल पर्सन है, यानी कि सिंगल को बोलते हैं, जिसको हिंदी में एक वचन बोलते हैं, उर्दू में वाहिद बोलते हैं, इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है ना। अब आ गया नंबर 10 में, जमा किसे कहते हैं। तो जमा 2 या 2 से ज़्यादा को कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुवचन, उर्दू में जमा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको प्लूरल बोलते हैं। देखिए, लड़के, लड़कियां, अकलाम। अकलाम क्या है, ये जमा है किसका, कलम का। कलम का जमा अकलाम। लड़के, लड़का का, लड़कियां, लड़की का। ठीक है ना, ये हो गया आपको जमा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप, ये आपको याद रट लेना होगा। मुज़क्कर किसे कहते हैं, नर जाति को कहते हैं। मुज़क्कर नर यानी मर्द जाति को कहते हैं। लड़का, घोड़ा, लड़का, घोड़ा। लड़का का घोड़ा नहीं कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। लड़का एक दिखा रहा हूँ कि मुज़क्कर सिमत है, और ये घोड़ा जैसे जानवरों में घोड़ा हो जाएगा और इंसानों में लड़का। मुअन्नस मादा यानी जो बच्चा पैदा करने वाली है, औरत जाति को कहते हैं, जैसे कि लड़की, घोड़ी। वहाँ लिखा हूँ लड़का, घोड़ा, तो लड़कियाँ खुश होती होंगी, वाह, तो लड़का को घोड़ा कह दिएगा। तो यहाँ भी सुन लीजिए आप, लड़की, घोड़ी और बकरी। ठीक है, यानी एग्जाम्पल दिया गया है, बुरा मानने की नहीं है, एक तरह के यानी कि जानवरों में घोड़ी दिया गया है और इंसानों में लड़की दिया गया है। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, ज़मीर के 3 सिगे होते हैं। इम्तिहान में पूछ सकता है कि ज़मीर के सिगे कितने होते हैं। 3 है। नंबर 1 गायब, नंबर 2 हाजिर और नंबर 3 मुतकल्लिम। इसका बिल्कुल डीपली तौर पे वहाँ समझाया गया है। फिर हर एक के 2 सिगे होते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएंगे। गायब, वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। तो हर एक के 2-2 होते हैं, तो 3 दूना 6। तो ज़मीर के कितने होते हैं, 6 सिगे होते हैं। कितने होते हैं, 6 सिगे होते हैं। 3 है लेकिन 3 दूना 6 हो जाते हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर 14 में है, गायब किसे कहते हैं, जो मौजूद हो, जो मौजूद न हो। गायब जो मौजूद न हो उसको बोलते हैं गायब। उसके लिए ज़मीर वह सब आता है। हाजिर जो मौजूद हो उसके लिए ज़मीर क्या है, तुम सब, तुम सब। मुतकल्लिम जो बात करता है उसके लिए ज़मीर में मैं और हम आता है, मैं और हम आता है। तफसील से हमने वीडियो में पढ़ाया है, वह वीडियो को देखिए, इंशाल्लाह समझ में आएगी। इतने जानिए कि हाजिर कहते हैं जो मौजूद हो, गायब कहते हैं जो मौजूद ना हो, और मुतकल्लिम कहते हैं खुद बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। अब आइए, और उससे भी इम्पोर्टेंट, साबका और लाहिका। साबका किसे कहते हैं, मुस्तकिल लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ मिल करके माना को बदल दे, उसको बोलते हैं साबका। समझा दे रहा हूँ, समझिए यहाँ पर है। जैसे कोई लफ्ज़ है इज्जत, क्या है, इज्जत, ये लफ्ज़ है इज्जत, माना दे रहा है कि शान वाला है, इज्जतदार है, इज्जत वाला है। अब इसी इज्जत से पहले जो है ना, इस इज्जत से पहले लगाते हैं बेइज्जत,
क्या हो जाएगा, नंगा हो जाएगा, बेशरम हो जाएगा, कमीना हो जाएगा कि आदमी बेइज्जती है, बेइज्जत है, इसके पास कोई इज्जत नहीं है। तो ये इज्जत लफ्ज़ ऑलरेडी मौजूद है, उससे पहले बे लग गया तो माना को चेंज कर दिया, तो यही बे हो जाएगा आपका साबका। क्या हो जाएगा, साबका। यही इज्जत है, इसको हटा दीजिए, यही इज्जत है, और यहाँ लगा दिया इज्जत, यहाँ दार लगा दिया तो दार हो जाएगा आपका लाहिका। मालूम हुआ कि कोई लफ्ज़ ऑलरेडी पहले से मौजूद है, उस लफ्ज़ से पहले कुछ जुड़ जाए और माना में फ़र्क हो जाए, उसको बोलते हैं साबका। और कोई लफ्ज़ पहले से मौजूद है और माना भी दे रहा है, उससे आगे कुछ जोड़ दिया जाए और माना बदल जाए, उसको बोलते हैं लाहिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुतरादिफ किसे कहते हैं, मुतरादिफ किसे कहते हैं, मुतरादिफ को कहते हैं इंग्लिश में हम साइनोनिम, सेम टू सेम, यानी अल्फाज अनेक हो, अल्फाज अनेक हो और माना उसका एक आता हो। जैसे देखिए रंज व गम, रंज व गम, रंज के माना भी तकलीफ और गम के माना भी तकलीफ, दुख होता ही है, दुख और तकलीफ ये भी क्या है, वही है। रंज के माना भी सदमा, गम के माना भी सदमा, दुख के माना भी तकलीफ और तकलीफ के माना तकलीफ, यानी कि जो एक अल्फाज कई तरह के हों माना उसका एक आता है, उसको बोलते हैं क्या, मुतरादिफ बोलते हैं, याद रखिएगा। तो मुतरादिफ किसे कहते हैं, एक जैसे हम माना, माना यानी हम माना को एक क्या कहते हैं, मुतरादिफ कहते हैं। मुतजाद, मुतजाद कहे, जिद कहे, तजाद कहे, मुखालिफ कहे, उल्टा कहे, बात एक ही है। मुतजाद पूछ रहा है, इन लफ्ज़ों के मुतजाद चुनिए, ज़िद बताइए, तजाद क्या होगा, मुखालिफ क्या होगा या उल्टा माना जाहिर करते हैं, उसको बोलते हैं हम मुतजाद बोलते हैं। जैसे लड़का है उसका विपरीत लड़की, उसका उल्टा लड़की, है ना। तो हो गया कि मुतजाद जो उल्टा माना को बताए उसको बोलते हैं मुतजाद। सिफत, सिफत खूबी या खराबी को कहते हैं, सिफत खूबी या खराबी को कहते हैं। जैसे गोरा काला, गोरा काला, गोरा काला, अच्छा बुरा, नेक और बद, जितने भी आ जाएंगे अच्छाई या बुराई सब के सब सिफत हो जाएंगे। मौसूफ जिसमें खूबी होगी, जिसमें अच्छाई होगी वो हो जाएगा मौसूफ। जैसे लाल कलम, नेक लड़की, बुरा लड़का, लाल कलम, नेक लड़की, बुरा लड़का, ये जितना आपको दिखाया जा रहा है तो ना, तो लाल कलम में लाल सिफत, कलम मौसूफ, नेक लड़की नेक सिफत, लड़की मौसूफ, बुरा लड़का तो बुरा सिफत और लड़का मौसूफ। तो खूबी को कहते हैं, खराबी को कहते हैं सिफत, दोनों में से कोई हो और जिसके अंदर वो खराबी या खूबी है उसको बोलते हैं मौसूफ। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 23 में, जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारा जाए, जैसे या ऐ लड़के इधर आओ, ऐ लड़के, तो लड़के नहीं होगा, ऐ हो जाएगा आपको नेदा और लड़का मुनादा हो जाएगा। तो जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारे वो हो जाएगा नेदा और जिसको पुकारे वो हो जाएगा आपका मुनादा। ठीक है ना, मुनादा जिसको पुकारा जाए, जैसे बोलते हैं या अल्लाह, या मोहम्मद बेड़ा पार लगाना, या मोहम्मद, तो हमने मोहम्मद साहब को किससे पुकारा, लफ्ज़ या से। या अल्लाह, ऐ अल्लाह, अल्लाह किससे पुकारा, या से। तो अरबी में या, उर्दू में ऐ, उर्दू में ऐ, तो या और ऐ क्या है, नेदा है, अल्लाह मुनादा है। जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारे वो नेदा है और जिसको पुकारते हैं, जिसको बुलाते हैं वो पूछते हैं, इसको बोलते हैं मुनादा बोलते हैं। ठीक है, ये 24 होगा आपके। अब आइए और इम्पोर्टेंट उसे, ये इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 25 नंबर, दोहा किसे कहते हैं, दो दो लाइन के शेर को दोहा बोलते हैं। ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो समझिए आपने कुछ नहीं पढ़ा। नीचे वाला टॉपिक, दोहा दो दो लाइन के शेर को दोहा कहते हैं। 26 में, मसलस किसे बोलते हैं, तीन तीन लाइन के शेर को मसलस बोलते हैं। 27, रुबाई किसे बोलते हैं, चार चार लाइन के शेर को रुबाई बोलते हैं। 28, मखमस किसे कहते हैं, पाँच पाँच लाइन के शेर को मखमस बोलते हैं। और आगे में है मुसद्दस। 29 में किसे बोलते हैं, छः छः लाइन के शेर को मुसद्दस बोलते हैं। अब बताइए, इसमें सवाल आपका 2 से 3 आ सकता है, पूछ सकता है इम्तिहान में कि तीन तीन लाइन के शेर को क्या कहते हैं, दोहा, मसलस, रुबाई, मखमस, क्या चुनेंगे आप।
अब चुनेंगे ज़रूर कि 3-3 लिखा है तो मसलस, 3-3 लिखा है मसलस। अब यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ 2-2 लिखा है, 2-2 लाइन के शेर को तो क्या हो जाएगा दोहा, 2-2 लाइन के शेर को दोहा, 3-3 लाइन के शेर को मसलस, 4-4 लाइन के शेर को रुबाई और 5-5 को मखमस और 6-6 को मुसद्दस। याद रखिएगा ये इम्तिहान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इसको याद कर लिया, इंशाअल्लाह आपको अब फ़ायदा होगा। ये 29 हो गया और लास्ट में क्या होगा मतला और मक्ता। मतला और मक्ता, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला, आखिरी शेर को मक्ता। इम्तिहान में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी इंशाअल्लाह। ये 30 जो टॉपिक मैं आपको दिया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार सुन लीजिएगा। और आपसे मेरी आखिरी और रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो कम से कम इस क्वेश्चन के ऊपर, इन टॉपिक के ऊपर आप लाइक ज़रूर करें। अगर लाइक नहीं करते हैं तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आपसे मेरी बात गुजारिश है वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दूसरों को शेयर ज़रूर करें। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, करो मेहरबानी अहले ज़मी पे, करो मेहरबानी अहले ज़मी पे और खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। बेशक आपने सुना जान लिया, दूसरों को शेयर करें तो आपको सवाब भी मिलेगा। कोई आपकी बहन या भाई जो मास्टर हैं अगर कामयाबी हासिल करते हैं आपके शेयर करने से तो फ़ायदा होगा। हाँ याद रखें कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ ख़ास टॉपिक करके, तब तक अल्लाह हाफिज़।